Welcome to Education World online class, and we are learning chemistry in this topic. So basically, carbon and its compound, the topic, and this is also called the organic chemistry. And in this chapter, so our today's topic is the alkane. Okay, and they are basically the reaction of alkanes and their physical properties. So first we'll start with the alkane as we learn. um, in the previous classes, the general formula of alkane is CnH2n plus 2. Okay, so the first member of this family is the methane. So if we put n equal to 1, so basically that will give you the methane. Okay, so this is our the first member. This is methane, and this is also called the Mars gas. Okay, so this is also called the Mars gas because this is actually frequently we found this methane gas in the marshy land. Okay, so in the marshy land we get this gas, so that's why it is also called the Mars gas. Okay, so the main properties, so basically this is if you think about the physical properties, तो इसका जो physical properties है तो वो है colorless colorless no odorless non poisonous gas, non-poisonous gas. So this is like a colorless, odorless, non-poisonous gas. Okay, and the most important part is that it is the main constituents or the main components of natural gas. ओके, सो नेचुरल गैस जो मिलता है तो उसका जो जो मेन कंपोजिशन और मेन जो कंटेंट तो कंपोनेंट जो है, तो उसमें क्या पाया जाते हैं, ये जो मीथेन गैस है तो ये ही है मेन कंपोनेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. Okay, so now we'll learn about the laboratory method, know how we can synthesize the methane gas in laboratory. So basically in the laboratory we can synthesize the methane gas just by using this is called the sodium acetate and the soda lime. Soda lime, it is nothing but a mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide. So this is called soda lime. Okay, so if we heat this one, so basically we'll get methane and sodium carbonate and carbon dioxide. Okay, so this is important for your board exam. So what will happen if we heat sodium acetate in presence of soda lime? So basically this is a the preparation laboratory preparation method of methane. So basically methane gas will come out along with carbon dioxide. Okay, so sorry, this is not carbon dioxide, this is a calcium oxide. So basically with this the methane will come out and you can get the methane gas. Okay, so this is the most important important reaction frequently you can get this in the exam. And then we'll talk about the how the methane react with the oxygen. So basically if we have a sufficient amount of oxygen, so basically this will give you the carbon dioxide and water. So if you basically burn, so if you have a sufficient amount of oxygen, so this will produce no carbon dioxide. But if we have no the insufficient oxygen, so basically if we have insufficient oxygen, so this is O2. So what क्या मिलेगा, तो वो उस टाइम कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होगा जो कि ना जो हाईली पॉइजनस है.
ठीक है। तो ये है सिंपल रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन। बिकॉज ऑफ द कंबशन रिएक्शन, सो दिस इज नो, ये इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए हम इसको फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है नो हेलोजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो हेलोजिनेशन, हेलो हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो इसमें क्या होता है, जो मीथेन ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी हेलोजन लेते हैं, X2, where X2 इक्वल टू, और X2 इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, सो कोई भी लेंगे तो इसमें क्या होगा, तो स्लोली रिएक्शन, सो फर्स्ट स्टेप, सो बेसिकली इट विल प्रोड्यूस CH3X, so then slowly if we do the reaction, so then slowly it will give H2X2, and then so on, H, X3, then H, sorry, this is now CX4। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, ये फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। इवन इन डार्क, नो फ्लोरीन रिएक्ट विद दिस एल्केन, तो ये फ्लोरीन के साथ नो अंधेरे में भी रिएक्शन होता है। लेकिन जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, तो इसमें इसके लिए उनके लाइट की जरूरत है, जैसे एच न्यू, और जो सनलाइट है उसका जरूरत है। लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन के लिए हमें थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, इसमें थोड़ा बाहर से हीट भी देना पड़ता है। ठीक है। तो दिस इज द important reaction what will happen now if you react the alkane with the halogen, so what would be the reactivity order? So यहाँ पे ऐसा रहेगा, जो फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन है। ठीक है। तो ऐसा ऐसा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और ये डार्क में भी रिएक्शन करते हैं, तो इसके लिए सनलाइट का ज़रूरत है, सनलाइट का ज़रूरत है। फॉर दिस वन यू नीड द लाइट एज वेल एज द हीट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो क्या होगा, जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो उसमें क्या जरूरत है, डार्क में करते हैं, लाइट में करते हैं, और डिफ्यूज लाइट में करते हैं। एटलीस्ट यू नीड लाइट। सो इफ यू गिव ए डिफ्यूज लाइट, तो मतलब जो उसमें होता है, जो थोड़ा लाइट और थोड़ा अंधेरी रहता है, तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूट होता है, और ज्यादा लाइट रहेगा तो ये ऐसे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो है नो क्रैकिंग। तो ये क्या होता है, क्रैकिंग का मतलब होता है, जैसे मीथेन को, sorry, this is methane. If we heat it, very high temperature like a 1300 Kelvin, तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन मिल जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाता है। तो एक्चुअली इसमें क्रैक करके जो कार्बन और हाइड्रोजन वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो रिएक्शन होता है, ये पाइरोलिसिस। ठीक है। सो फाइरोलिसिस मतलब ये तोड़ना, एक्चुअली जो मीथेन को तोड़ के जो होता है, वही होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ठीक है। तो और अगले वाला जो रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ क्या रिएक्शन होता है, जो हाइड्रोकार्बन है, तो ये स्टीम के साथ, स्टीम स्टीम के साथ वो रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट भी चाहिए, निकेल ऑन एल्यूमिना Al2O3, एंड टेम्परेचर इज 1000 केल्विन। तो इसमें क्या होता है, जो होता है, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो होता है, तो ये जो गैस मिलता है, एक्चुअली इसको वाटर गैस, और वाटर गैस और सिन गैस और सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस बताए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन चैप्टर में भी ये आएगा, जहाँ पे क्या होता है, जो कैसे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, तो ये भी एक रिएक्शन है। जैसे हम नो
मीथेन के साथ जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो उसमें रिएक्ट करके ये जो वाटर गैस और सिंथेसिस गैस और सिन गैस, ये बहुत मतलब डिफरेंट नेम है, लेकिन ये जो है कंपोजिशन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर ये आता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो अभी पढ़ते हैं जो और भी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो वो है जो मीथेन का यूज। ठीक है, तो ये जो क्रैकिंग करके जो कार्बन मिलता है, सो बेसिकली दिस इज यूजेस। और ये जो कार्बन मिलता है वो नो ब्लैक पेंट के लिए, पेंटिंग इंक, सो पेंट पेंट्स और नो प्रिंटिंग इंक, प्रिंटिंग इंक के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, जो जो पहले जो बताया, जो मार्स गैस जो है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही हाई होता है, मतलब ज़्यादा हीट होता है, तो इसके लिए वो फ्यूल के रूप में, और एज ए फ्यूल वी यूज बोथ फॉर बोथ एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है। और जो सिन गैस, जो बताया, वाटर गैस और सिन गैस, वाटर गैस और सिन गैस, सिन गैस प्रोडक्शन के लिए भी ये मीथेन का इस्तेमाल होता है। तो अगले जो कंपाउंड है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जो एल्केन का जो सेकंड मेंबर है इस फैमिली का, तो वो है नो इथेन। सो अगेन द इथेन, व्हाट इज इथेन? जो इथेन है, जो सेकंड मेंबर ऑफ द एल्केन फैमिली, तो इसका जो स्ट्रक्चर है C2H6, C2H6 है ये इथेन। तो हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जो जैसे हाइड्रोजिनेशन, जो फर्स्ट रिएक्शन जो है हाइड्रोजिनेशन, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड होना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजिनेशन में इसमें होता है CH2। ये आपको पता ही होगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, तो ये है एल्किन है, तो उसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके ये इथेन बन सकता है, CH3। तो ये है इथेन। तो इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए, और हमारे जो है एक्चुअली जो निकेल, एंड द टेम्परेचर इज 523 टू 573 केल्विन टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऐड होता है। तो ये जो हाइड्रोजन जब ऐड होता है, तो उसको बताते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो और भी तरीका है, जैसे एल्केन से हम बनते हैं, तो वो एल्काइन से भी हम बना सकते हैं, ये हाइड्रोजिनेशन से। एल्काइन का मतलब है उसमें क्या है, जो ट्रिपल वन है, तो वो भी वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करके ये जो है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो वो ये बन सकता है CH3 CH। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन करके फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, सो दिस इज योर एल्कीन, अगेन एल्कीन, एंड दिस इज योर एल्काइन। तो जो है, तो उसमें से हम जो इथेन बना सकते हैं। और भी जो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसमें जो इसको बोलते हैं वर्ज रिएक्शन और वर्ज रिएक्शन। तो जो स्पेलिंग जो है, ये है WRTZ. Okay, so this is very important reaction again. So if you take like a alkyl halide, alkyl halide, something like this, this is CH3 iodide, and in presence of sodium metal and dry ether as a solvent, तो इसमें क्या होता है, इसमें इथेन बन जाता है। तो ये जो है इथेन, तो ये रिएक्शन से सिर्फ इथेन से हम बना सकते हैं, लेकिन मीथेन इसमें से बनाना मतलब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है अल्किल हैलाइड लेते हैं, तो ये जो फर्स्ट मेंबर जो है वो मीथेन रहेगा। मीथेन इस रिएक्शन से नहीं बनेगा। तो जो जो मिनिमम जो मतलब जो कार्बन है, एटलीस्ट 2 कार्बन एल्केन बना सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के द्वारा। ओके, another important reaction is the Kolbe's reaction or Kobe reaction. So this is a Kolbe's reaction or Kolbe's electrolysis.
ठीक है। तो ये जो है ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ द corresponding नो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक acid. So if you do the electrolysis, so then you will have no mm, CH3. Okay, so this will produce, but along with this, so basically we will have also the again hydrogen. So this is how it happened. This is again you have to remember. So basically this is why it is important for competitive exam. So you have to know, because this is in solution, it ionize acetate ion, and sodium ion. Then if you do the electrolysis, so basically that will give you corresponding at anode, anode. So anode there will be a oxidation, तो यहाँ पे जो होता है, जो एसीटेट आयन है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है, जो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो छोड़ने के बाद क्या होता है, CH3 नो CH3CO2 होता है, उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है। लेकिन एट कैथोड क्या होता है, ये कैथोड में होता है जो वाटर रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, तो वो रिडक्शन दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है, H2 plus OH minus ये होता है। तो the important questions is why it is very important, like the questions can appear is like that, if you do the electrolysis what will happen, basically you will get the ethane as well as the hydrogen, but which electrode you will get. So basically at anode you will get the hydrocarbon, at cathode always you will have like a hydrogen. Okay, so again if you take the higher order acid, so basically this part, this alkyl part will you will have a dimeric form. Okay, so again if you take instead of sodium salt of ethanoic acid, if you take a sodium salt of propanoic acid, so then you will have the 4 carbon. I hope this you understand. So basically double will be the, so let's take example, if you have CH2COONA, so this is from this one you will get, if you do the electrolysis of this one, so basically you will have dimer of this, so this is CH3 CH2 CH2 CH3. Okay, so again from this, for this reaction you can prepare the ethane and higher order alkane, not methane, you cannot prepare with this one. And at the same time you have to remember, so this is only you will get the hydrocarbon at anode. Okay, so this is a very, these are the very important reaction. Again this is, you can in the laboratory method simply you can get like a, in the laboratory method you can take what we use for the methane gas. So just you soda lime, you heat it with the soda lime, that is a mixture of your NaOH and CO कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसमें क्या आएगा, जो CH3 आ जाएगा, और उसमें क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी नो इन एग्जाम में आ सकता है। ओके, एंड देन द सेम वे if we do the combustion of, so basically if we burn ethane, so this is your combustion of the alkane, so basically this will give C2H6, तो इसमें क्या आएगा, plus oxygen, so you will have carbon dioxide plus water. Okay, so this is the simple reaction, and the most important, again you can do the chlorination, all this it will give the similar product, but here the important reaction is the oxidation. Okay, तो ये जो है oxidation of oxidation of your ethane, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन है डिपेंडिंग ऑन the reagent, so you can have different product like a C2H6, if you oxidize in presence of copper tube, and so basically you are having copper tube,
at 475 Kelvin. Okay, and if you have a the pressure is 100 atmosphere, so then what will happen? You will produce ethanol. So in presence of air, so basically the oxygen you will get from air, and from this oxidation you will get the ethanol. Okay, but if you use the another reagent like a manganese oxide, so C2H6, so if you do the reaction, so basically oxygen in presence of MnO or manganese oxide, okay, so you will get acetaldehyde. Okay, so this is the different reaction. For this again you need high pressure 200 atmosphere, and temperature is 400 degree centigrade. तो ये जो होता है ऐसे ही depending on the reagent. So if you use copper you will have ethanol. If you use the manganese oxide you will have the aldehyde. But if you use the manganese acetate, so then again if you use the same with the manganese acetate, basically MnCH3COO minus, sorry, this is whole 2, and if you hit it like a 100 to 160 degree centigrade, so then you will end up with the acetic acid. Okay, so now you learn. So basically, again from ethane we can get different product. So we can get the acetic acid, we can get acetaldehyde, we can get the ethanol depending on the reagent. Okay, so basically you have to remember this is what you want to synthesize. So for transformation reaction, this is very important. All these reagent. So if if you got a question, so like how you can convert the ethane to the acetaldehyde. The simple reaction, so basically you will do the reaction in presence of manganese oxide catalyst. Okay, so this is very important in terms of the very transformation reaction, and we know the methanol or ethanol. Sorry, this is the ethane. It is a use in LPG. So basically it is uses. So whatever the fuel, so basically in terms of fuel we use as a mixture of fuel in lpg lpg gas. So basically it is a, one of the component in your lpg gas. Okay, and also this is we used for the production of, from the reaction we see. So basically for the production of ethanol acetic acid and acetaldehyde acetaldehyde, we use the ethane. Okay, so these are the major use of the hydrocarbon ethane. So now these are the two mainly in our syllabus, and the same way we can use the higher order. If we have a if we want to synthesize the higher order hydrocarbon, so we could do like the same procedure or similar procedure we can adapt. But now we'll learn about the alkene. Okay, so alkane, as you know, the general formula of alkene is CnH2n. Okay, so alkene it contain the CC double bond. So the first member it will be CH2 double bond CH2. So this is our the first member. And how we can prepare this one? So basically this is called the dehydrohalogenation. The first, this is very important reaction. This is dehydrohalogenation. तो इसमें क्या होता है, जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, सो मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और हैलोजन वो एक साथ रिमूव होता है. जैसे हम ऐसे लेंगे जो कंपाउंड है CH2Br, तो इसमें क्या होता है, जो KOH, the concentrate KOH, but this is have to have alcoholic ALC. We'll write, when we'll write aqueous we write AQ, but when we write alcoholic this is a ALC. When we use the alcoholic KOH, so then we'll have this is the first member of the alkene. Okay, so this is the
the most one of the important and the reaction it called dehydrohalogenation. इसका मतलब है जो इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन और हेलोजन वो इसमें से निकल जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, तो और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है तो वो इथानॉल के हम ऐसे डिहाइड्रेट करेंगे, जैसे द इंडस्ट्रियली एक्चुअली वी गॉट दिस इथिलीन और इथीन in just heating aluminum oxide at 300 degrees centigrade. Okay, so basically this will C2H4. So this is the industrial method. Industrial method. Okay, so this is industrial method, and there are many methods. So again, if you use the we learn the concentrated sulfuric acid dehydrating agent. So again, if we heat C2H5OH, so that is ethanol in presence of concentrated H2SO4, so we can get the ethene or ethylene. Okay, so these are the process by which we can synthesize the alkane or the first member of the alkene family. Okay, so now again the important reaction. So basically again the hydrogenation, this is called the addition of hydrogen or called हाइड्रोजिनेशन। तो पहले पढ़ा था डिहाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब है वहाँ पे जो हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा है, और यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होता है, जैसे पहले वाला रिएक्शन में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या होता है, जो निकेल और प्लाटिनम कैटालिस्ट जरूरत है, और जो टेम्परेचर है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी जो रिएक्शन बन जाएगा। ये हाइड्रोजनेशन हमने 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 पढ़ा था, तो पहले जो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, तो वहाँ पे ये पढ़ा था, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन ऑफ एल्केन, तो इसी का जो वो इसमें एक इंटरेस्ट है, तो हम इसको बताते हैं जो डेरिवेटिव होता है, तो जो किसी का प्रोडक्शन के लिए और प्रिपरेशन के लिए हो रहा है, और किसी जो है तो उसका जो केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हो रहा है, तो जो इथेन का जो प्रिपरेशन जिसको पता है, तो वो इथिलीन का रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन क्या होगा तो वो उनको पता होगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजन ऐड हो रहा है, तो हेलोजन ऐड होता है कैसे, डबल बॉन्ड ऐसे CH2 प्लस कोई भी हम हेलोजन जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो CH2X और CH2X आ जाएगा। तो इस X का मतलब क्या है, यहाँ पे X का मतलब है नो क्लोरीन ब्रोमीन नो आयोडीन, तो ये जो है हेलोजिनेशन, इसका मतलब है जो डबल बॉन्ड है तो उसमें हेलोजन ऐड हो रहा है, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे होता है जो ब्रोमीन का जो कलर है, ब्रोमीन लिक्विड है पता है, तो इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन कलर है, और क्या होता है ये जो ब्रोमीन जब ये एल्किन और एल्काइन में ऐड होता है तो वो डीकलराइज हो जाता है, ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में एडिशन होने के लिए ऐसा होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट विल हैपन और व्हाई द ब्रोमीन कलर डिसअपियर व्हेन इट रिएक्ट्स विद द एल्किन और एल्काइन। ओके, सो दिस लिए ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर एटलीस्ट नो बोर्ड एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो और भी पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं जो इसका जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो उसमें क्या होता है, जो जैसे हाइड्रोजिनेशन होता है हेलोजिनेशन होता है, तो ऐसा इसके साथ हेलोजन जो एसिड होता है वो भी रिएक्ट करता है, तो वो रिएक्ट करके क्या बनते हैं, जैसे हेलोजन ऐड होता है ऐसे भी वो हेलोजन का जो एसिड होता है वो ऐड देता है,
और जो एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसका एल्किल हैलाइड बन जाता है। ये रिएक्शन है। और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो इथिलीन का, ये है पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो डेली लाइफ है तो इसमें इसका एप्लीकेशन बहुत होता है। जैसे ये जो पॉलीमर एन, मतलब एन मॉलिक्यूल, हमको पता नहीं है कितना मॉलिक्यूल चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है, ये पॉलीमर हो जाता है CH2 डबल सिंगल CH2 होल एन। तो एन कोई भी हो सकता है, मतलब मोर देन 50 100 1000। तो इसमें जो होता है, ये जो होता है पॉलीमर बनता है। हम इस जिसको जानते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन और जो प्लास्टिक यू आर यूजिंग फॉर कैरी बैग, सो दोज आर यू गॉट फ्रॉम दिस कंपाउंड। ओके, सो दैट इज व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कंपेटिटिव में भी पूछा जा सकता है, जो पॉलीमर होता है वो कैसे बनता है। सो बेसिकली पॉलीमर इज नथिंग बट ए पॉली इथीन और पॉलीइथिलीन। सो इसमें जो पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारे जो ऐसे कार्बन चेन बना के, जैसे हमने कैटिनेशन प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द ओजोनोलिसिस। सॉरी, दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। ये जो रिएक्शन होता है, जो एल्कीन और एल्काइन, तो ये क्या करते हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। और ओजोन, हम पता है हमारा जो एटमॉस्फेरिक लेयर में जो होता है, जो यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वही ओजोन है। तो वो इसके साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो प्लस नो 1 2 में तो इसका डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन इसको जो बताते हैं इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ओके, इथिन ओजोनाइड, ओजोनाइड। ठीक है, सो दीज आर द few important things, uh, and important reaction for the alkene or the first member of the alkene, and we can learn the uses of alkene। तो इसमें क्या होता है, जो अल्कोहल और एल्डिहाइड बनाने में यूज होता है। ये और एक जो इम्पोर्टेंट यूजेस है, तो ये होता है जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिफनिंग एजेंट। तो इसमें क्या होता है, हमारा मार्केट में जो पक्का केला मिलते हैं, और कोई भी फ्रूट जो उसको कच्चा तोड़ के क्या होता है, ये गैस यूज करके उसको पकाया जाता है। तो इसीलिए उसका क्या होता है, जो फ्रूट में जो अच्छा कलर आता है, तो उसके मतलब उसमें ये आर्टिफिशियल रिपनिंग एजेंट उसमें यूज हुआ है। Okay, so these are the most the use important use that frequently we use, and we learn this. So this is a polymer making. So basically, for polymer synthesis also, we use polymer synthesis. Um, Synthesis. This is in large or industrial scale. We use the ethene. Okay, so these are the molecule or the reaction about the alkene, and now today maybe we learn about the alkyne. Okay, so this is the similar way, and uh, the most important reaction. So basically we learn the alkyne or first member of the alkyne. So we learn, so this is the general formula CnH2n minus 2। तो दिस इज ए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट मेंबर आता है CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो इथाइन, और इथाइन, और क्या होता है इथाइन, और द कमर्शियल नेम इज एसिटिलीन और एसिटिलीन। ठीक है, तो ये जो होता है ये कैसे बनता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम सॉरी कैल्शियम कार्बाइड, जो कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनते हैं, एसिटिलीन बनते हैं। और ये जो होता है ये रिएक्शन हमारा जो
स्ट्रीट में जैसे जो हॉकर्स जो बत्ती जलाते हैं ना, तो ये रिएक्शन के द्वारा ही जलाते हैं। तो उसमें कैल्शियम जो आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो एक डब्बा में और लैंप में कैल्शियम कार्बाइड रहता है और उसमें पानी डाला जाता है, तो वो रिएक्शन करके जो एसिटिलीन होता है और तो वही जलता है बत्ती के रूप में। ऐसा इसका यूज जो होता है हमारा डेली लाइफ में। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो होता है जो again dehalogenation. So basically if we dehydrohalogenation, so if we take like this, तो इसमें क्या होता है, टू ब्रोमीन हम लेंगे तो इसमें क्या होता है, जो एल्कोहलिक ALC अल्कोहलिक KOH हम लेंगे तो इसमें क्या होता है, जो एसिटिलीन बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे भी कैसा होता है, जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, सो इसमें क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसमें मतलब है जो हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ यहाँ से जो रिमूव होता है ये मॉलिक्यूल से, तो इसको इसलिए बताते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। The same way we can do the hydrogenation. So basically if we do the hydrogenation, so what will happen? So again, if you take the acetylene and if you put hydrogen in presence of the catalyst, mostly the nickel catalyst, and if you heat it, so basically you will get the ethane. So that we learn in the alkane chapter, and this is preparation of ethane. Again, this is a reaction of acetylene or the alkyne, the first member of the alkyne. Okay. Another important reaction for this, so basically acetylene, this is your all we'll talk about in the higher class, maybe you will learn. So basically this is acetylene, this is a aliphatic compound. If we heat it in presence of red copper tube, so red copper tube, तो इसमें क्या होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है तो वो होता है C6H6 बेंजीन। आप लोगों को शायद पता होगा बेंजीन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो थोड़ा हीट देना पड़ता है। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शन होता है, तो ये एक है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, और इसमें क्या होता है, जो एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स बनता है, जो हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी हम देखेंगे ऐसे जैसे एल्केन, एल्किन और एल्काइन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जो एल्किन और एल्काइन जो होता है, तो ये भी क्या करते हैं, जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ब्रोमीन नहीं, जो हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसे ही इसको CH नो Br2, इसमें Br2 ऐसे हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज बाय डूइंग दिस रिएक्शन यू कैन डू the the test, the practical test you can do, and by this reaction you can conclude. Again we'll learn about the oxidation. So oxidation is important because oxidation, कोई भी जो सामान होता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, ओपन एयर में रहता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। so if we take a oxidizing agent like this CH, and we can the chromic acid or K2Cr2O7, O7 इन एसिडिक मीडियम हम लेंगे तो उसमें क्या होता है, इसमें एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, एसिटिक एसिड बनता है, लेकिन हमारा पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो डिफरेंट और अलग होगा, तो प्रोडक्ट भी अलग होता है। जैसे अल्कालाइन KMnO4 हम लेंगे विच इज रिलेटिवली वीक अल्कालाइन KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सैलिक एसिड होता है इसको बताते हैं डाइबेसिक एसिड ऑल्सो। ओके, so this is our acetic acid, we learn in the next class, and this is your oxalic acid. ठीक है, this is oxalic acid, this is acetic acid. So these are the important reaction we learned about the alkenes, alkane and alkyne, and now we learn about the
user. So basically again this is also used as a artificial no artificial ripening agent for fruits and vegetables. Okay, और इसमें क्या होता है, जो नो ऑक्सी एसिटिलीन जो टॉर्च होता है, जो वेल्डिंग में होता है, वेल्डिंग वेल्डिंग में जो होता है, इसको बताते हैं ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च for no cutting and welding purpose. तो ये जो होता है मेनली यूज होता है, जैसे द मेन यूजेस एंड विद दिस, so basically we are ending this class, and in the next class we'll discuss about the alcohol and acid, and I hope you enjoy this class. Thank you for your kind attention.